Assalamu alaikum students, how are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. In the continuation of the Unit 5, the Rainy Day poem, which we discussed before, this would be the continuation of the prepositions and prepositional phrases. First of all, the simple thing which has been mentioned in your book, as I tell you always, keep the books in front of you. That would be helpful for you people. But before that, I'd like to share some of the slides with you. So कुछ स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले prepositions क्या होती हैं उससे हवाले से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. उसके बाद prepositional phrases क्या होती हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, हम लोग सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, prepositional phrases होती क्या हैं. सो इस हवाले से हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और कंटिन्यूएशन में आपके पास शायद एक्टिविटीज़ भी हों बुक में, वो बुक वाला हिस्सा भी हम लोग चेक करेंगे. ओके, सो रिगार्डिंग द prepositions and prepositional phrases, we are going to discuss what are prepositions exactly. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि preposition है क्या. यहाँ पे कुछ अल्फाज मेंशन हैं आपके लिए जो under, over, by the clover. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं what are the prepositions under, over, by the clover. Okay, so by, over, under, you can see these are the prepositions. Prepositions, what do they show? They show us where, like in your bed. Okay, कहाँ, जगह के हवाले से. कुछ prepositions हैं उसे हम आगे शायद आपके अगले यूनिट में या उससे अगले यूनिट में आपको पोजीशन और टाइम के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में. लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग prepositional phrases यूज़ करेंगे. आपने पिछले लेक्चर्स या पिछले बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है जगह के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्लेस. preposition shows where, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पे है. सो इसके हवाले से लाइक द पिक्चर यू कैन सी लाइक इन योर बेड. ओके, बेड में, ओके, बेड के अंदर, नॉट अंदर, इट मीन्स बेड में. ओके, सो बेड पे, यहाँ पे लाइक इन योर बेड इट हैज बीन मेंशन. सो इन इज अ preposition which shows where is the person, the subject. Okay, next you can see they tell us time and also place. जैसे कि मैंने मेंशन किया था पहले, अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वो टाइम और प्लेस भी मेंशन करते हैं. जैसे कि prepositions का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसके लिए हम टाइम और प्लेस का भी इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद like past 9:30 in your face. Okay, like past 9:30, past 9:30 में 9:30 के बाद, 9:30 बजे के बाद. Okay, so likewise in your face, in your face, तुम्हारे चेहरे पे. So we are mentioning where and as well as the place and as well as the time. Place कौन सा है? Face. Face के हवाले से बात हो रही है. Next, prepositions do their job in a way that just amazes. Okay, over, ऊपर, अंडर, नीचे. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको prepositions के हवाले से. उससे आप जाएंगे आगे तो देखेंगे relating nouns and pronouns to the other words and phrases. ओके, by nouns और pronouns को एक दूसरे के साथ जोड़ना दूसरे words and phrases में, वो काम भी preposition करता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. आपका जो टॉपिक है आज का prepositional phrases के हवाले से. तो ये कुछ prepositions हैं आपके सामने, एक लिस्ट है लंबा सा जो आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन. मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ, हो सके तो सारे के सारे मेंशन कर देता हूँ. जैसे कि अबाउट है, अबाव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beneath, beside, between, by, down, during, except, for, from, in front of, inside, instead of, into, like, near, off, on, onto, on top of, out of, outside, over, past, since, through, to, toward, under, underneath, until, up, upon, with, within, and without. Okay, with, within, and without. So these are some of the prepositions. ये एक लंबी लिस्ट है आपके सामने prepositions की. Okay, now we continue towards the preposition. What prepositions are? A preposition relates the noun or pronoun following it to another word in the sentence. तो ये एक दूसरे को noun या pronoun को relate करते हैं एक दूसरे के साथ. Preposition का काम ये होता है.
The choice of preposition affects the way the other words in a sentence relate to each other. In the following example, read the sentence using each preposition in turn. Notice how each preposition changes the relationship between played and gym. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह preposition वो जो time, place वगैरह वगैरह इन चीज़ों को change कैसे करती हैं, ठीक है, noun और pronoun के साथ इनका मिलाप कैसे करती हैं और इसका जो position है कैसे change करती हैं. यहाँ पे 3 prepositions use हुए हैं स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं आपके सामने. तो ये कैसे positions को noun की जो position है वो कैसे बताते हैं और कैसे change होती है. The girls played near the gym, जिम के पास. The girls played opposite the gym. Opposite मतलब जिम के सामने, आमने सामने जिसे कहते हैं opposite. The girls played in back of the gym. Okay, जिम के पीछे. Okay, so here you can see how the 3 prepositions show the position of the noun, that is girls. गर्ल्स का जो पोजीशन है वो बता रहा है preposition कि वो जिम के किस साइड पे है. सो जिम यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी कि नाउन को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है और उसकी जगह बताता है. यहाँ पे यूजिंग योर लिस्ट ऑफ preposition, सर्कल द preposition इन दीज सेंटेंसेस. ओके, जो लिस्ट है आपके साथ वो यहाँ पे कितने कितने prepositions लग सकते हैं इस सेंटेंस पे वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं later on. ओके, द ब्रेव नाइट कैरिड द प्रिंसेस थ्रू द कैसल डोर. Through, यहाँ पे आप देख सकते हैं there were so many people that Jessica had to park her car behind the building. Mr. Creighton wanted to talk to her students but they were unable to keep their voices quiet during class. During जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह वो prepositions इस्तेमाल हुए हैं. एक है compound prepositions, यहाँ पे आगे जाके हम लोग देख सकते हैं the girls played dash the gym. एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे. कंपाउंड प्रीपोजिशंस वो होती हैं जो एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस मेल जो होता है एक से ज्यादा मींस 2 प्रीपोजिशंस जो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस में उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है. कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके सामने. अकॉर्डिंग टू, अहेड ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम, एज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय मींस ऑफ, in addition to, in back of, in front of, in place of, in spite of, instead of, in view of, next to, on account of, on top of, out of. So यहाँ पे कौन सी compound prepositions आप use कर सकते हैं इस sentence में. The girls played dash the gym. ठीक है, ये आपने as a practice आप खुद कर सकते हैं. Okay, so let's try find the compound prepositions. अभी compound prepositions को ढूंढना. According to archaeologists, kicking games are played in many ancient societies. इन sentences में आप देख सकते हैं कि compound prepositions कहाँ use हुए हैं. According to archaeologists, okay? According to archaeologists, kicking games were played in many ancient societies, okay? According to. However, the modern game of soccer was developed in England in the 19th century. In addition to, okay? Addition to आप देख सकते हैं compound preposition. In rugby football, the athlete controls the ball by means of, okay, handling and carrying. However, association football forbids the use of hands. Okay, जैसे कि यहाँ पे use of देख सकते हैं, means of देख सकते हैं, ऐसे compound prepositions sentences में use हो सकते हैं. Now we come towards the prepositional phrases. What are prepositional phrases? Okay, a preposition must always be followed by a noun or pronoun. Prepositional phrases में एक preposition को follow करने वाली चीज होती है वो है noun या pronoun. Noun या pronoun उसको follow करती है preposition के बाद. The group of words beginning with the preposition and ending with the noun. Preposition से शुरू होना और noun पे खत्म होना उसे हम prepositional phrase कहते हैं. The noun or pronoun that follows the preposition is called the object of the preposition. Okay? जो noun या pronoun जो preposition के बाद आता है उसे हम preposition का object कहते हैं. Notice that when identifying the object of a preposition, you do not include any modifiers of the noun or pronoun. Noun और pronoun की जो modifiers होते हैं जो उसकी शक्ल बदल देते हैं. For example, या noun को इस तरह कन्वर्ट हो जाता है जिसे एडवर्बियल फ्रेजेस या एडजेक्टिव की जो फ्रेजेस होते हैं वो ना बन जाए. ये आपने जहन में रखना है कि मॉडिफायर्स वहां पे यूज ना हो. जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं. द पैकेज अंडर द सिंक इज माइन. ओके, द पैकेज अंडर द सिंक. अंडर सिंक प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्ट.
the ball near the tree. Okay, near is a preposition and tree is the object. So ये हो गया आपका prepositional phrase. इसके बाद एक वार्निंग है आपको, जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया, अभी वापस रिपीट कर रहा हूं कि वो मॉडिफायर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए कि वो आप कोई और फ्रेज ना बना दें, उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज की जगह एडवर्बियल फ्रेज या कुछ और फ्रेज ना बना दें. बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट बिगिंस विद टू. ओके, टू से जो शुरू होता है उसका मतलब ये नहीं है वो कि prepositional phrase बने. टू टाउन, टू हर क्लब. ओके, विद एन इन्फिनेटिव दैट बिगिंस विद टू रन, टू बी सीन. ये एक इन्फिनेटिव है जो वर्ब के साथ अटैच्ड है. टू रन, ओके, टू रन इज एन इन्फिनेटिव. टू बी सीन इज एन इन्फिनेटिव. इट इज अ preposition with the verb, so इसे इन्फिनेटिव कहते हैं. So remember, a prepositional phrase has a noun और a pronoun as an object. जो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन के बाद वो एक नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. सो इस वजह से आप इन चीजों का ख्याल रखें व्हेन यू आर मेकिंग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आप प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है. शी शुड हैव गॉन टू द ऑफिस. टू ऑफिस, टू प्रीपोजिशन हो गया और ऑफिस आपका नाउन हो गया. व्हेन शी हैड द टाइम. नेक्स्ट इन्फिनेटिव फॉर्म देख लें आप. द बॉय कट इन लाइन to view the gold coin. To view, to is preposition, view is a verb, it's not a noun. Okay, view verb है, noun नहीं है, इसे infinitive कहते हैं. So इसको आप mix up ना करें. Okay, so this was a simple warning kind of a thing. So now write the prepositional phrases or phrases in which sentences and underline the object of each preposition. यहाँ पे आप prepositional phrases find करें और underline करें जो object होता है preposition का. जैसे कि first one sentences आपको दिए गए हैं examples. The Football Association Cup, a soccer tournament, was first organized in 1871. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि preposition कौन सा है और object कौन सा है. Noun. Okay, noun or pronoun. The Football Association Cup soccer tournament was first organized in 1871. Okay. The tournament, which is still played today, finishes at Wembley Stadium in London with the annual cup final at Wembley Stadium. यहाँ पे आप देख सकते हैं. After its organization, soccer spread rapidly through England. Through preposition England noun. Around 1888, regular league play began in many areas of the country. ठीक है, of or country. In 1872, the first international game took place at Glasgow between all-star teams from England and Scotland. From England and Scotland, उसी के साथ-साथ took place at Glasgow. Okay? So distinguishing between adverbs and preposition. यहाँ पे आप adverbs और prepositions को mix up ना करें, जैसे कि पहले mention किया मैंने. Some words can be either prepositions or adverbs. कुछ अल्फाज इसमें prepositions हो सकते हैं या तो adverbs हो सकते हैं. इनको mix up ना करें. Depend on how they are used in a sentence. जब आप जुमलों में इस्तेमाल करते हैं उसे, वहां पे पता चलता है कि वो as a adverb use हुआ है या as a preposition. To be a preposition, a verb must have an object and be part of a prepositional phrase. अगर उसे preposition की शक्ल देनी है आपने, ना कि adverb, उसके लिए आपने एक object उसके साथ attach करना है जो एक noun या pronoun हो सकता है, जो एक prepositional phrase बनाता है. prepositional phrase जिसे हम कहते हैं. An adverb modifies a verb and has no object. Adverb जो है verb को modify करता है, जो क्वालिटी ऑफ अ वर्ब वो बताता है कि एक्शन जो हो रहा है वो किस तरह हो रहा है. हम वापस पीछे नहीं जा सकते कि आपको एडवर्ब एज अ पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताया जाए एडवर्ब है क्या. एडवर्ब इज सिंपली वर्ड व्हिच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन, वर्ब कि वो एक्शन जो होता है उसे कैसे बताता है. ठीक है, जो एक्शन हो रहा है, समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, हाउ इज इट हैपनिंग. ओके, ही इज रनिंग स्लोली. ओके, लाइकवाइज. So adverb modifies a verb and has no object. वो verb को modify करता है लेकिन object उसमें नहीं होता. उसके बाद preposition देख लें यहाँ. The ball flew past third base. Okay, flew past third base. Past गुजरा third base, वो जो इलाका है जहाँ पे वो गेंद पहुंच रहा है. ओके, so you can see base और past दोनों mentioned है. और adverb में देखें the umpire ran past quickly. Okay, ran past quickly. यहाँ पे ये adverb बताता है, ran भी है और past quickly.
So this is an adverbial phrase, not a prepositional phrase. यहाँ पे देख सकते हैं आप next one. They sat inside the dugout. Okay, they sat inside the dugout. Please come inside soon. Okay, please come inside soon. Inside यहाँ पे भी use हुआ है, but here it is not a preposition, rather it is an adverbial phrase. Okay. Now we have to distinguish between adverbs and preposition. A single word acting as an adverb answers where, when, how or what degree about the verb. जो मैंने मेंशन किया पहले कि वो वर्ब की डिग्री बताता है कि कहाँ, कब, कैसे और क्या. ओके, सो ये चीजें जो बता रही होती हैं वो सिंगल वर्ड जो है वो एक्ट करता है एज एन एडवर्ब. इफ यू वांट टू सी द एक्लिप्स यू विल नीड टू गो आउटसाइड. Outside tells you where you will need to go. Note, without an object, outside is an adverb. अगर यहाँ पे object नहीं है तो वो adverb का काम कर रहा है outside. यहाँ पे ये preposition नहीं है. ये आप नहीं कह सकते outside मतलब ये तो position बता रहा है, लेकिन यहाँ पे object नहीं है. ठीक है. So if you want to see the eclipse, ग्रहण देखना है आपने तो आपने बाहर जाना होगा. सो यू आर गोइंग आउटसाइड. सो इट इज शोइंग द डिग्री ऑफ वर्ब गो, कहाँ जा रहे हो. ओके, सो ये मेंशन किया जा रहा है. सो इट इज एन एडवर्बियल फ्रेज. अभी दूसरा देख लें. व्हेन द सेम वर्ड इज अ प्रीपोजिशन द एंटायर प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्ट्स एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब. ठीक है, जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है तो अब देखें वो कंप्लीटली जो एडवर्ब को उसके मॉडिफाई कर देता है. डोरथी कलर्स आउटसाइड द लाइन्स. ठीक है, लाइन के बाहर. ओके, सो बाहर जो मेंशन किया है यहाँ पे लाइन के बाहर, जो लाइंस के बाहर वो रंग कर रही है. शी इज कलरिंग इट. सो दिस शोज एज अ preposition. Lines is the object of the preposition. यहाँ पे object आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर मौजूद है. Lines यहाँ पे मौजूद है. Noun, pronoun, object जो preposition के लिए मौजूद है. So this is a prepositional phrase. यहाँ पे देख सकते हैं outside as a adverb and here outside is as a preposition. So इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि preposition के साथ object लाजिम है तभी ये prepositional phrase कहलाएगा. If not, it will be a simple adverbial phrase. To determine whether a word is an adverb or a preposition, look at what follows the word. Simple. जो अल्फाज को फॉलो कर रहा है उसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज है. अगर आप वो आइडेंटिफाई कर ले तो ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगी कि ये preposition है या adverb है. Is there a noun acting as an object of the verb? क्या कोई नाउन है जो वर्ड के जो वहां पे ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है. इन अदर वर्ड्स, इज देयर अ वर्ड दैट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट अबाउट द वर्ड. ओके, जो एक सवाल का जवाब दे रहा है कि क्या है वो. ठीक है, अगर इस तरह कुछ है तो वो यहाँ पे प्रपोजिशन कहलाएगा. इट विल बी सम टाइम बिफोर हिज स्केड्यूल सेटल्स डाउन. ओके, डाउन टेल्स द रीडर वेयर द स्केड्यूल सेटल्स. देयर इज नो ऑब्जेक्ट फॉलोइंग इट. ओके, डाउन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके साथ, डाउन के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. सो इट इज एन एडवर्बियल फ्रेज. सो आफ्टर दैट प्लीज सिट डाउन एंड लिसन. सिट डाउन एंड लिसन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिसनर, डाउन टेल्स द लिसनर वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है. सिट डाउन एंड लिसन. देयर इज नो ऑब्जेक्ट telling him or her what to sit down. Okay, क्या बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ बैठने के हवाले से बात हुई है. So this would be a prepositional phrase. तो दोनों जगह आप देख सकते हैं डाउन डाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक में उसे एज अ एडवर्ब यूज किया गया है, नेक्स्ट में वो एज अ preposition है जिसमें ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच्ड है, फॉलो कर रहा है उसे. One need only look down the roster to see the impact of so much travel. Roster answers the question of what. ठीक है, what का क्वेश्चन वो जवाब दे रहा है about the word down. Down के हवाले से वो बता रहा है कि need only look down. Okay, नीचे देखने के हवाले से. One need only look down what? The roster is the object of the preposition down. ठीक है, roster जो है वो है down का preposition. Okay, down is the preposition and roster is the object या noun. So यहाँ पे clearly बताया जा रहा है कि down the roster के नीचे. So roster के नीचे means it is a prepositional phrase. तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी. यहाँ पे आप के सामने सेंटेंसेस हैं कुछ, इसे मैं ऐसे ही आपकी स्क्रीन के सामने छोड़ देता हूँ. अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, और एज एन एक्टिविटी आप इन चीज़ों को
कवर कर सकते हैं, मीन्स इसमें prepositions कहाँ हैं, adverbs कहाँ हैं, infinitives कहाँ हैं, ठीक है. सो ये some of the sentences हैं. In modern baseball, an umpire stands behind home plate. A single strikeout can cause one team to win a game or to fall behind. At a night game, the lights are turned on. The pitcher stands on the mound. The players warm up before the game. They've practiced the skills many times before. Through popular legend, Abner Doubleday invented baseball. However, those doubting the claim find it quite easy to see through. Most scholars believe that a variety of similar games over time eventually gave rise to baseball. They believe these games carried over from other cultures. So, ever since the older days, there's been a silly myth. Ever since भी आप देख सकते हैं the same way. Another example that prepositions are correct to end a sentence with. Okay, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आपको दिया जाता है कि that prepositions are correct to end a sentence with. तो वो prepositions correct नहीं होते जो sentence को end करते हैं. But write your sentence carefully and you will discover that ending with a preposition is often where is it's at. ओके, सो यहाँ पे सिंपली आपको बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन लास्ट में यूज नहीं होता, प्रीपोजिशन के लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है जब आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यूज करते हैं. सो दिस वाज अ सिंपल लेक्चर ऑन इट. नाउ विल कम बैक टू योर बुक. यहाँ पे आपके बुक में देख सकते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन, प्रोनाउन, gerund or clause which is object of the preposition. For example, at home with me by saying about what we need. Okay, यहां पे prepositional phrase का एग्जाम्पल पहला देखें. We drove to the store. To the store एक prepositional phrase है जहां पे आप to preposition भी नजर आ रहा है आपको. कहां जाना है? To. You are going to, but where? To the store. जगह object mentioned है. So this is a prepositional phrase. After several minutes, we found the key for the door. After several minutes एक prepositional phrase है क्योंकि after several minutes उसका object है. For the door, okay? For the door. For preposition, door उसका object. Next example आप देख सकते हैं. The flocks of tiny swallows. छोटी चिड़िया, swallows, चिड़िया की बात हो रही है. The flocks of tiny swallows flew over the trees near the lake. यहां पे देख सकते हैं आप 3 prepositional phrases यूज हुए हैं इस सेंटेंस में. पहला, the flocks of tiny swallows. Of tiny swallows. Tiny swallows छोटी चिड़िया. So छोटी चिड़िया is an object of preposition. So preposition और object है. So ये बन गया prepositional phrase. Flew over the trees. Over ऊपर, दरख्त के ऊपर से. Okay, ऊपर से. So ट्रीज ऑब्जेक्ट हो गया, ओवर प्रीपोजिशन हो गया. ये एक अलग प्रीपोजिशनल फ्रेज है. उसके बाद नियर द लेक, नदी के पास, लेक या पॉन्ड, व्हाटएवर द वाटर बॉडी इज, इसके पास, नियर द लेक. सो नियर इज अ प्रीपोजिशन एंड लेक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. सो दिस इज अनदर प्रीपोजिशनल फ्रेज. तो यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसके हवाले से आप मेंशन कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. Complete the following sentences by choosing the suitable prepositional phrases given in the box. आपको prepositional phrases यहाँ पे नजर आ रहे हैं. In the wrong direction, okay, in direction, on cool energy, on cool energy, on honesty and hard work, under a tree, out of their village, about what we need. Okay, so here you can see some of the examples are given prepositional phrases. तो इसके हवाले से आपने ये फिल करना है कि इन सेंटेंसेस पे कौन से prepositional phrases सूट करती हैं. ठीक है. The cat is sitting. क्या होगा जवाब आपके अंदाजे से? In the wrong direction, on coal energy, on honesty and hard work, under a tree, out of their village, about what we need. The cat is sitting under a tree. Okay, this would be the correct one. We told the shopkeeper in the wrong direction, on coal energy, on honesty and hard work, under a tree, out of their village, about what we need. We told the shopkeeper about what we need. एक और भी कर लेते हैं, बाकी आप कोशिश करें. ठीक है, इट वुड बी एन एक्टिविटी ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो, आप भी लिख सकें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और आपको भी समझ आए. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी. इस तरह मैं सारा कुछ कर दूंगा तो आप क्या करेंगे. ओके, सो दे मूव्ड in the wrong direction,
on coal energy, on honesty and hard work, under a tree, out of the village, about what we need. Do not move in the wrong direction. Okay. The next two, our government should work, our सक्सेस डिपेंड्स. ये दो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी तो हो गए. इन दो को आप करेक्टली सेलेक्ट करें. ठीक है. सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर योर प्रैक्टिस. सो दिस वाज द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. उसके अलावा मेक 5 सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन देम. ठीक है. यहाँ पे आपने एक 5 सेंटेंसेस अपने खुद बनाने. एक तो आप ये लिख लें, उसके बाद आप अपने सेंटेंसेस भी बनाएं जिसमें आपने प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट को नजर में रखना है, अपनी जहन में रखना है कि जो भी आप सेंटेंस बनाएं उसमें प्रपोजिशन अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट हो मौजूद. तो आप इस तरह की कुछ 5-10 इस तरह प्रैक्टिस करें प्रपोजिशनल फ्रेजेस ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप लिख सकें. ओके. नाउ आफ्टर दैट प्रपोजिशनल फ्रेजेस वी आर नॉट गोइंग टू एंड एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द समरी ऑफ द पोएम. ओके. जो पोएम हमने पढ़ा था द रेनी डे, उसकी समरी के हवाले से हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे कि समरी पहले होती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. देन एन एक्टिविटी इज गिवन, राइट द समरी ऑफ द पोएम द रेनी डे. आपने समरी लिखनी है. दैट आई विल शेयर विद यू इन द स्लाइड्स. ओके. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट समरी इज. सबसे पहले हम लोग समरी देखते हैं. राइटिंग स्किल्स में आपकी है यहाँ पे कि पोएम की समरी आप कैसे लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं समरी को. It is a short piece of writing describing the main points, not details. ब्रैकेट में लिखा गया है कि आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स मेंशन करने हैं. एक छोटा सा ब्रीफ 4-5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन का होना चाहिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करें, ना कि डिटेल्स ऑफ एन ओरल और रिटन टेक्स्ट. ठीक है. रिटन टेक्स्ट हो या ओरल हो, उसका जो आप समराइज करते हैं किसी चीज को, उसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के उसे पेश करते हैं. सो दैट वुड बी अ समरी. बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग अ समरी वी नीड टू रीड द टेक्स्ट केयरफुली. सबसे पहले टेक्स्ट केयरफुली पढ़ें, मतलब ध्यान से वो पढ़ें. उसके बाद गौर से पढ़ें. मेक रफ नोट्स, पहले रफ नोट्स बनाएं उसमें से, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें जो मेंशन है उसे पहले निकालें वहां से. कंपेयर इट विद द ओरिजिनल टेक्स्ट, उसके ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ उसकी कंपैरिजन करें, मुवाजना करें फिर. एंड फाइनली राइट द समरी बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स. जो सही अल्फाजों का इस्तेमाल और स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल, जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, जो भी टेंसेस आप यूज़ करते हैं, और इसमें प्रपोजिशनल फ्रेजेस वगैरह, एडवर्बियल फ्रेजेस जो भी हैं, जिस तरह के भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आप यूज़ करते हुए, सही वाले यूज़ करते हुए आप एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसे हम समरी कहते हैं, जिसे समराइज करना. मतलब बहुत ज़्यादा बातें हुई, उसका जो क्रक्स है, जो उसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो उसमें से अखज़ करना, निकालना, आपने लिखना, इसे समरी कहते हैं. तो जैसे कि आपने पोएम पढ़ा था द रेनी डे, उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे. इट वाज क्लियरली रिटन बाय द पोएट. शायर ने जो मेंशन किया था सारी चीज़ें अपने नज़म में. ईच एंड एवरी स्टांजा, 3 स्टांजा थे उसमें. 3 स्टांजा में पहले में वो रेनी डे के हवाले से बात कर रहा है, दूसरे में वो अपने तकलीफ़ात और जो मुश्किलात हैं जो उसने गुजारी है ज़िंदगी, जो वो अभी इस दौर में वो अपने बुढ़ापे के जो दिन गुजार रहा है उसके हवाले से मेंशन किया था. फिर तीसरे में उसने एकदम से अच्छाई के हवाले से, ऑप्टिमिज्म के हवाले से बात की थी, पॉजिटिविटी के हवाले से बात की थी कि पॉजिटिविटी के हवाले से इन अ सेंस कि वो कह रहा था कि हाँ, अंधेरे के दिन, अंधेरे के बादल छाते हैं ज़रूर हमारी ज़िंदगी में, बट फॉर सम टाइम वो हट जाते हैं और सूरज की किरणें आती हैं. सारे लोग सब एक तरह के होते हैं, सबकी ज़िंदगियां इसी तरह होती हैं, किसी के गम कभी खुशी वाला किस्सा है यहाँ पे. सो लाइकवाइज ही वाज मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग. तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने निकाल लिए वहाँ से, हर स्टांजा से, उसको समराइज करना कि पोएम ने जो पोएम में पोएट जो वर्ड्सवर्थ है वो क्या कह रहा है. ठीक है. सो लेटर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ इट वी विल डिस्कस द समरी. मैंने लिखी हुई है समरी, आपको दिखा देता हूँ. यू मे नोट इट डाउन फॉर इंफॉर्मेशन. कैसी समरी कैसी होती है, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है और एंडिंग कैसे होती है. लेट्स गो टुवर्ड्स द समरी.
जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि ये समरी ऑफ द पोएम हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये लिखी जाती है और क्या होता है. सो वी हैव द समरी ऑफ द पोएम द रेनी डे राइट इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स सी हाउ इट इज रिटन. ओके, समरी यहाँ पे आप देख सकते हैं. लेट मी रीड इट आउट. यू मे फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इट. The poem The Rainy Day, written by Henry Wadsworth Longfellow, tells about a rainy day which is very dark and dreary. Due to rain, all the dried up leaves of the trees and plants. वहाँ पे वाइन्स मेंशन किया गया था, ग्रेप्स. इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेप वाइन तो दरख्त भी है, वो भी मतलब पत्ते झड़ते हैं उसमें से भी. सो एक जनरल बात आपने कर दी है यहाँ पे. Plants fall down in the middle of the poem. वो क्या कह रहा है? The tone of the poem becomes gloomy and dark. बहुत गमज़दा हो जाता है वो मिडिल में. पहले तो वो रेनी डे के हवाले से बात करता है कि बारिश वाला दिन था, बारिश वाले दिन में क्या क्या सिनारियो थी, उसकी एनवायरनमेंट कैसा था उस वक्त. ओके, उसके बाद वो बहुत ही पीछे मतलब जो अपने पास्ट में चला जाता है उसके हवाले से मेंशन है कि when the poet feels depressed because his youth has passed and his hopes are still incomplete, he continues to dwell in the gloomy past instead of looking towards the bright and hopeful future. अपने जो आने वाला कल है, जो खुशी वाला कल है, उसे भूल के ये अपनी माजी में रहता है और माजी के जो जितनी भी मुश्किलात वगैरह वगैरह जो वो सोच के उसे गमज़दा हो रहा है. Eventually he realizes that everyone has sorrowful moments in one's life. तो वो ऐसा ऐसा इस बात पे आ जाता है, आमादा हो जाता है कि हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, गम होती हैं. एट द एंड ऑफ द पोएम, लास्ट स्टांजा की बात हो रही है यहाँ पे. लास्ट में वो क्या कहता है कि द पोएट डेवलप्स अ सेंस ऑफ होप एंड ही फील्स होपफुल बिकॉज ही रियलाइजेस दैट इन एवरीवन्स लाइफ देयर आर सम सक्सेसफुल एंड प्लीजिंग मूवमेंट्स एज वेल. ठीक है, जो उनके खुशी के मौके भी होते हैं सबकी ज़िंदगी में, हर वक्त गम नहीं होती है. तो ये चीज़ वो रियलाइज कर लेता है. So he must learn to probe into the bright future and dwell with it. Okay? तो वो अपने फ्यूचर के हवाले से सोचना शुरू कर दे कि खुशी वाले मौके जो आएंगे उसके हवाले से सोचे, ना कि पुराने गमगीन कहानियाँ वो वापस दोहराए. So this was the summary of it. आप देख सकते हैं all the three stanzas, सारे 3 stanzas के जो जितने भी पार्ट्स थे वो सारे मेंशन हैं यहाँ पे कि पहले स्टांजा में वो क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में. जैसे कि अपने स्टांजास अलग अलग से भी पैराफ्रेजिंग की थी, वो अलग बात है. समराइजिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पैराफ्रेजिंग. ओके, पैराफ्रेजिंग सिर्फ उस स्टांजा की जो तशरीह होती है, तर्जुमा और तशरीह जो हम लोग कहते हैं नज़मों की जो होती है उर्दू लैंग्वेज के हवाले से, तो द सेम थिंग इज हियर. ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह समरी अलग से है, पैराफ्रेजिंग अलग से है. पैराफ्रेजिंग वो सिर्फ एग्जैक्ट स्टांजा की होती है. वो जो स्टैंजा लिखी है पोएट ने, वो जो नज़म का जो हिस्सा है, उस स्टैंजा में वो पोएट क्या कह रहा है, शायर क्या कह रहा है, वो आप बता रहे हो. समरी में आप उसका पूरा जो स्टोरी है, पूरी स्टोरी है, वो आप बता रहे हैं. पूरा जो नज़म है, पूरी पोएम जो है, वो आप बयान करते हो समरी में. ठीक है, सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम एंड दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट 5, द रेनी डे पोएम which we discussed. Later on we will meet again inshallah with another lecture and with another unit. Till then, Allah Hafiz. Thank you.